So, a very good morning, students. Greetings of the day. Once again, I welcome you all for the online lecture series on the railways, airport, and waterways. This is actually the module 4, and this will be the lecture related to the numericals for taxiway design. So, in previous 3 lectures, we have seen 7 different numericals related to the this runway design. Now we will solve the numericals and we'll see the step how we'll design a taxiway and we'll see different types of numerical. Okay, तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल है, मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराता हूं। पहला न्यूमेरिकल ये कहता है डिटरमाइन दी determine the turning radius determine the turning radius of the taxiway for a supersonic aircraft with a wheelbase of with a wheelbase of 30 meter and tread of main loading gear as 6 meter for a design turning speed of 50 kmph assume Hello student. coefficient of friction assume coefficient of friction between tire and pavement surface as 0.13 and width of Hello taxiway student. pavement width of taxiway pavement as 22.5 meter. Hello student. क्वेश्चन देखिए, determine the turning radius of the taxiway for a supersonic aircraft with a wheelbase of 30 meter and tread of main loading gear as 6 meter for a design turning speed of 50 kmph. Assume coefficient of friction between tire and pavement surface as 0.13 and width of the taxiway pavement as 22.5 meter.
तो टर्निंग रेडियस देखिए, हेलो स्टूडेंट। हेलो सोल्यूशन स्टूडेंट। R equals to V square upon 125F. R equals to V square. V is your 50 kmph. So 50 whole square upon हेलो 125 into F, where F is your 0.13. So R की वैल्यू आ गई 153.85 मीटर। ये है आपका पहला कंपोनेंट और उससे है टर्निंग रेडियस। उसके बाद इक्वेशन यूज करेंगे हॉर्नजेफ इक्वेशन। आपका जो हॉर्नजेफ इक्वेशन है वो क्या कहता है? वो कहता है R इक्वल्स टू 0.388 W स्क्वायर अपॉन 0.5 T माइनस S, जहां आपका W है व्हील बेस ऑफ एयरक्राफ्ट और उसको कहते हैं, वो दिया है आपका 30 मीटर, वो दिया है 30 मीटर। ठीक है, T हो गया आपका विड्थ ऑफ टैक्सीवे पेवमेंट और वो हो गया आपका 22.5 मीटर और S है डिस्टेंस बिटवीन हेलो पॉइंट मिडवे of the main gears हेलो and the edge of and the edge of हेलो taxiway pavement तो S हो जाएगा हेलो हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में S will be हम लोगों ने यूनिट वेट ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। 6 plus 6 by 2 9.0 मीटर। सो R की वैल्यू हो गई 0.388 into W square, that is 30 का स्क्वायर अपॉन 0.5 into T हेलो 22.5 माइनस S की वैल्यू आ गई 9.0। सो यहां से हम R की वैल्यू क्या निकाल लेंगे 155.2 मीटर। ठीक है, यहां से R की वैल्यू क्या निकल गई हेलो स्टूडेंट। 2 मीटर। ठीक, अब C पॉइंट पे आओ। The absolute minimum turning radius. So very good morning for
supersonic aircraft of any speed equals to 180 मीटर। तो इन तीनों में से अगर हम हाईएस्ट वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा 180 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? adopting the highest value of the three cases mentioned above, the turning radius हेलो of the taxiway to be actually provided हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोग will be 180 मीटर। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन करते हैं हम टर्निंग रेडियस। ठीक, टर्निंग रेडियस कैसे डिजाइन करते हैं? क्या कह रहा है? डिटरमाइन द टर्निंग रेडियस ऑफ द टैक्सीवे फॉर अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट विद अ व्हील बेस ऑफ 30 मीटर and tread of main loading gear as 6 meter for a design turning speed of 50 kmph. Assume coefficient of friction between tire and pavement surface as 0.13 and width of the taxiway pavement as 22.5 मीटर। तो टर्निंग रेडियस सबसे पहले अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूले का यूज करें तो वो कैसे निकालते हैं? R इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 125f, v की वैल्यू है 50 होल स्क्वायर अपॉन 125 इंटू 0.13, आर की वैल्यू आ गई 153.85 मीटर। उसके बाद हॉर्न जेफ इक्वेशन यूज करेंगे तो आर इक्वल टू 0.388 डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 0.5 टी माइनस एस। तो डब्ल्यू की वैल्यू व्हील बेस ऑफ एयरक्राफ्ट 30 मीटर, टी विथ ऑफ द टैक्सीवे पेमेंट दैट इज 22.5 मीटर और एस इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट midway of the main gears and the edge of the taxiway pavement। तो s की वैल्यू हो गई 6 प्लस 6 बाई 2 इक्वल्स टू 9 मीटर। तो r की वैल्यू हो गई 0.388 इंटू 30 स्क्वायर और अपॉन 0.5 इंटू 22.5 माइनस 9.0। तो r की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 155.2 मीटर। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम टर्निंग रेडियस फॉर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फॉर एनी स्पीड वो कितना देते हैं? 180 मीटर। तो इस केस में क्या होगा? इन तीनों की जो वैल्यू आई है इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हम अडॉप्ट करेंगे। सो अडॉप्टिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द थ्री केसेस mentioned above, the turning radius of the taxiway to be actually provided will be 180 meter। so इस केस में जो हम प्रोवाइड करेंगे वो है आपका आंसर कितना हो जाएगा? इस केस में वो होगा 180 मीटर। प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल में। इसको नोट करिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल। चल नहीं रहा।
दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल वो भी है। So a very good morning students, greetings. Adding gear as 6 meter into T हेलो 22.5. So a very दूसरा न्यूमेरिकल में क्या है, एग्जाम्पल 2 की बात करें, टैक्सीवे डिजाइन में दूसरे न्यूमेरिकल की बात करें तो दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है डिटरमाइन द रेडियस, determine the radius of a taxiway for a supersonic aircraft to negotiate the curve at a turning speed of 60 kmph. The wheelbase is 30 meter and wheel tread is 7.2 meter. The airport is of B type as per ICAO. ठीक है, डिटरमाइन, क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द टैक्सीवे फॉर अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट टू नेगोशिएट द कर्व एट अ टर्निंग स्पीड ऑफ 60 kmph. द व्हील बेस इज 30 मीटर दिया हुआ है एंड द व्हील ट्रेड इज 7.2 वो भी दिया हुआ है. द एयरपोर्ट इज ऑफ बी टाइप एज पर ICAO. तो सबसे पहली चीज तो हमको ये दिखानी है, निकालनी होगी, जो हमने तीनों वैल्यूज निकाली थी ना, अभी प्रीवियस में हमने तीनों वैल्यूज निकाली थी, वो तीनों वैल्यूज को निकालिए. ठीक है, तीनों वैल्यूज को अगर निकालेंगे तो सबसे पहला हमने क्या निकाला था, R. तो v स्क्वायर अपॉन 125f. तो R की वैल्यू हो गई v स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर अपॉन 125 इंटू 0.13. तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 221.54 मीटर. दूसरी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था R इक्वल्स टू 0.388 W स्क्वायर अपॉन
0.5 t माइनस s। ठीक है, तो इस केस में हुआ t की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो व्हील ट्रेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी w की वैल्यू दी हुई है और t की वैल्यू दी हुई है, t की वैल्यू दी हुई है 7.2 मीटर। ठीक, और w की वैल्यू दी हुई है 30 मीटर। ठीक है, s की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 9.6 मीटर। यहां t की वैल्यू आपकी दी हुई है 22.2 मीटर। तो r की वैल्यू हो गई 0.388 into w, that is 30 square divided by 0.5 into t, 22.2 minus s, that is 9.6. So r equals to 211.64 मीटर। और तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस होता है कितना प्रोवाइड करते हैं 180। तो तीसरा केस था the absolute minimum turning radius for supersonic aircrafts irrespective of any speed equals to 150.0 meter, adopting the highest value of the above three। निकालना क्या है, the radius of the taxiway, the radius of the taxiway will be 221। सो इस केस में r की वैल्यू 221.54 मीटर। क्लियर है, इसको एक बार देखिए, नोट करिए। नोट इट डाउन। देखो इस केस में क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ अ टैक्सी वे फॉर अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट टू नेगोशिएट द कर्व एट अ टर्निंग स्पीड ऑफ 60 kmph। ठीक है, तो स्पीड कितनी ले रहे हैं 60 kmph। द व्हील बेस इज 30 मीटर एंड द व्हील ट्रेड इज 7.2 मीटर। द एयरपोर्ट इज ऑफ बी टाइप एज पर ICAO। सो सबसे पहले r की वैल्यू इंपेरिकल फॉर्मूले का यूज करके r इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 125f। तो सारी वैल्यूज को पुट किया, 60 का होल स्क्वायर अपॉन 125 इंटू 0.13। सो r की वैल्यू आ गई 221.54 मीटर। अब हम इंपेरिकल फॉर्मूले पे जाएंगे तो r की वैल्यू 0.388 w स्क्वायर अपॉन 0.5 t माइनस s। तो क्या हो गया, t की वैल्यू 22.2 मीटर, w की वैल्यू 30 मीटर और s इक्वल्स टू 6 प्लस 7.2/2 इक्वल्स टू 9.6 मीटर। ठीक है, तो r की वैल्यू 0.388 इंटू 30 का होल स्क्वायर अपॉन 0.5 इंटू 22.2 माइनस
माइनस 9.6, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई 211.64 मीटर। अब द एब्सोल्यूट मिनिमम टर्निंग रेडियस फॉर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पीड, वो कितना लिया जाता है, वो 150 मीटर जो है इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है ही है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनी स्पीड। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों की जितनी भी हाईएस्ट जो रेडियस है उसको हम अडॉप्ट करते हैं और उसी को हम टैक्सी वे के लिए रेडियस की तरह डिजाइन करते हैं। तो अडॉप्टिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द अबव थ्री, द रेडियस ऑफ द टैक्सी वे विल बी 221.54 मीटर। क्लियर है, यही है ये न्यूमेरिकल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes, नोट इट डाउन। इसको नोट कीजिए। तीसरा न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल हो गए। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका था न्यूमेरिकल्स ऑफ द टैक्सीवे डिजाइन, राइट। इसमें हमने अभी तक दो न्यूमेरिकल देखे, ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया, ठीक है। लेंथ ऑफ दी हमें जो है रेडियस को डिटरमाइन करना था, उसके लिए हमने पहले इंपेरिकल फॉर्मूला, देन फॉर्मूला, और जो तीसरा है कि 180 मीटर आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ दी दिस योर स्पीड, सुपरसोनिक के लिए वो 180 मीटर डिसाइडेड है। उन तीनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वही हम जो है इसके लिए अडॉप्ट करते हैं, राइट, ठीक है। तो एक और न्यूमेरिकल है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू these numerical, you can write to me at ankur495@bit.ac.in। सो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एक और न्यूमेरिकल है जो डिजाइन करना है, उसका हम कर्व भी बनाएंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट टू पेशेंटली। गुड डे एंड एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू गाइस।